Okay, dear students, welcome back. In the last video, we were actually doing pH solution. Okay, pH of the solution. We were discussing the topic pH of the solution. Before that, we discussed what is a pH scale. Okay, so I explained you with the help of the diagram given for universal indicator. The picture which is given for universal indicator, I used the half of that particular picture to explain you what is a pH scale. Okay, the pH scale was clear. 7 is neutral, left side acidic, right side basic. The scale measures from 1 to 14. Okay, ये clear हो गया था. After that we went to see the pH of some of the aqueous solution, commonly used aqueous solution, in which we were discussing रेन वाटर. ओके, लोग बोलते हैं ना रेन वाटर एसिडिक है, बाहर मत जाओ, नाव मत, एसिडिक है. ओके, द pH ऑफ रेन वाटर इज 6.5. अगर उसमें एसिड रहेगा भी तो pH विल बी 6.5. सो इट इज़ ऑलमोस्ट हार्मलेस टू ह्यूमन स्किन. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फर्स्ट रेन रहे या लास्ट रेन रहे, यू कैन हैव बाथ. इट डजेंट मैटर, इट डजेंट डैमेज योर स्किन और एनीथिंग लाइक दैट. ऐसा नहीं है कि एसिड रेन होएगा स्किन जल जाएगा, नहीं है. बिकॉज रेन वाटर द pH लेवल इज़ ऑलवेज 6.5. वाटर का pH आइदर 7 रहेगा या 6.5 रहेगा, बस उसी के रेंज में घूमेगा, उससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा. वी ऑल्सो सॉ द pH लेवल ऑफ ब्लड इज 7.4. इट रेंजेस फ्रॉम 7.3 to 7.4. If you get a question in your exam, what is the pH of human blood? So okay, so you have to write the pH of human blood, or human blood operates at a pH of 7.4 to 7.3. Okay, ये आंसर लिखना है आपको. बिकॉज जैसा बॉडी में हम लोग कुछ खाते हैं तो शुगर अप एंड डाउन होता है, वैसा बॉडी का pH, ब्लड का pH लेवल भी अप एंड डाउन होता रहता है. ओके, दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ लिविंग पीपल, लिविंग ऑर्गेनिज्म. मेटल या लकड़ी का टुकड़ा थोड़ी है जो कुछ चेंज होएगा बॉडी के अंदर. इफ़ अ पर्सन इज़ अलाइव, कुछ ना कुछ तो चेंजेस होता रहता है बॉडी में, बराबर. देन वी डिस्कस दैट वी डोंट हैव एनी प्योर सोर्स ऑफ वाटर in the world, because even the tap water which we think is pure and is coming in our house, okay, that is also at the time of purification of that water, cleaning of that water, disinfectants like chlorine, boric powder, etc. are used by the government to make the water suitable for drinking. So exactly H2O वाला water नहीं मिलता अपने को. We get some of the chemicals knowingly or unknowingly उसमें रह जाता है. That is the reason why when we run electricity from, if we try to do electrolysis from the tap water without adding a pinch of salt also, the current gets conducted because there are already impurities available in that water. Okay, sea water काही विचार करायचा गोष्टच नाही आहे, बिकॉज इट इज सॉल्टी वाटर. वी ऑलरेडी नो सोडियम क्लोराइड भर के है उसके अंदर. Okay, so pure source of water is there any pure source of water on the earth as per your chapter syllabus? It is not possible at all. Okay, but just for your knowledge, the purest form of water which has only H2O, okay, and no dissolved impurities, no chemical treatment, nothing, 100% pure H2O water, no other atoms of anything or molecules of any other element mixed in that. ऐसा प्योरेस्ट वाटर किधर मिलता है? दिस प्योरेस्ट वाटर इज फॉर्म ओनली इन द वेल ऑफ, ओनली इन वन सिंगल वेल इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ओके, दैट वेल इज कॉल्ड जमजम. ओके, एंड दिस जमजम वेल इज लोकेटेड इन द होली सिटी ऑफ मक्का. मुस्लिम लोगों का जो होली सिटी है, जहाँ हज करने के लिए पब्लिक जाती है. ओके, यू सी, यू माइट हैव सीन योर फ्रेंड्स, दे आर गोइंग ऑन हज, देयर पेरेंट्स गोइंग ऑन हज, and when they are coming back they are carrying water, कंटेनर भर के पानी लेके आते हैं वहाँ से. that water is from the Zamzam well. Okay, just because it is the purest form of water, H2O. even scientists have proved that. however higher electricity if you add through it, उसको ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दो तो भी उसके अंदर करंट पास नहीं होगा, because the bonding between hydrogen and oxygen is the strongest of all the bonds. this cannot be broken down easily. Okay, if it is in the purest form, nothing can break it. So this is only for your solution, only for your knowledge, not for your syllabus. Okay, if anyone asks you
is there any source of purest water? Where can you find the purest water in the world? So you can say in the well of Zamzam located in Mecca. Okay, चलो forget about that. ये हो गया. We have finished with the pH. What is the pH scale? What is the pH of the solution? Okay, then let's come to the point as universal indicator. What do you mean by indicator? Okay, we all know about litmus paper. What is litmus paper? Litmus paper हो गया, turmeric paper हो गया, जामुन, methyl orange, phenolphthalein. These are the kind of indicators we have already studied in our previous classes. बराबर, in your previous standards, not classes, in your previous standard. You know automatically litmus paper, when you touch it with some acidic solution it turns red, when you touch it with basic solution it turns blue. So each and every indicator changes color to show whether the given liquid is acidic or basic. It only helps us in determining the nature of the solution. Okay, but is there any indicator which can give you exactly what is the strength of, what is the basicity of that acidic solution, or what is the acidity of the basic solution provided to you? Can someone show you the pH of it? No, उसमें से अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें से कोई भी नहीं बता सकता है. बराबर, we cannot find the pH. For finding the pH, scientists have developed another indicator which has been given name as the universal indicator. Okay, this universal indicator is nothing, just look at the photograph here. Okay, what is litmus paper? Litmus paper is also a kind of paper which is soaked with some kind of liquid which acts as an indicator. Barabar. So there are various different kinds of indicators which change color on different pH levels. Okay, इतना आसान नहीं था, बहुत ढूंढ के एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट लोगों ने they found all these particular solutions which on touching or getting in contact with acids of different pH level or bases of different pH level, they show different colors. Okay, as you can see, the color ranging from orange, from red to orange to light orange, yellow, green, blue, violet, dark blue, violet, again different color, right up to purple. Okay, so these colors indicate if you are using there was an indicator prepared using all these particular solutions. Okay, so all these solutions are soaked on that particular piece of paper at a different level in a different design. ये ऐसा डिज़ाइन वाइज किया जाता है. ओके, सोल्यूशन उसके अंदर अलग अलग सोल्यूशन अलग अलग साइड में लगाया जाता है. सो व्हेन यू डिप दैट पर्टिकुलर पेपर इन द acid or base solution provided, it gives you the color, and on the basis of the color you can see and you can say if the color is matching with, say if the color is green, that means the solution is neutral. If it is blue, then it starts from 8 9 मैच कौन सा शेड से मैच हो रहा है. ओके, पेपर सोक किया, शेड आ गया, यू कैन मैच इट विद द स्केल. ये स्केल से मैच करके देखो, जहाँ पर उसका कलर मैच हो गया, दैट इज़ द पीएच ऑफ द सोल्यूशन. समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल इंडिकेटर. So what is the work of the universal indicator? What is important is a universal indicator shows different colors at different values of pH. Okay, universal indicator is not used to know the acidic or basic nature of the solution, but it is actually used to find the pH value. Okay, you can get a question, what is used to find the pH of a solution? Okay, forget about litmus, turmeric, जामुन वगैरह सब भूल जाओ. Okay, you have to answer universal indicator is used to find the pH of a solution. Okay, there is a short note about the pH जो मैंने अभी जो कुछ भी हिंदी में explain किया था, same thing has been given in English. Okay, forget about this because we have a very huge topic to be covered. Now in this particular video we are starting with the reactions, actual theme of the lesson, the reaction. Let's start with the first thing what we have learnt is about neutralization. Okay,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर, they neutralizes each other strength as per the basicity of acid and acidity of base. बराबर, हम लोगों ने डिफिनेशन में पढ़ा था. We studied what is acidity of bases and basicity of acid. It is the strength of the acids and bases to neutralize each other. बराबर. So they neutralize each other. Neutralize किया मतलब एक दूसरे का केमिकल पावर ख़त्म करके उसको डाइल्यूट कर दिया and formed water and salt. That such kind of reaction is called neutralization reaction. We took 3 to 4 examples. Okay, now look what it is. Let's assume the same reaction, sodium hydroxide plus hydrochloric acid will give you NaCl, that is Na cation, chlorine anion and plus क्या रह गया इधर? OH बाकी रह गया. बराबर, यहाँ OH बाकी रह गया है और इधर एक हाइड्रोजन एटम बाकी रह गया है HCl का. So this hydrogen atom combines with hydroxyl atom to form H2O. Okay, sodium already readily reacts with chlorine. ये इसका anion ले लेता है और हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड का anion ले लेता है. Okay, it's like changing partners. वो लोग क्या कर लिया? पार्टनर्स चेंज कर लिया, फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड H2O. Okay, एंड H2O कैसा हुआ? H2O कैसा फॉर्म हुआ? हाइड्रोजन का एक एटम radical, you can say a hydrogen radical and an hydroxyl radical which is left in the solution, they combine with each other to form hydrogen oxide or water. Okay, चलो ठीक है, वो केमिकल नाम गलती से निकल गया, होता है ऐसा. Now we saw, okay, same thing has been given again. Hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide. Forget about this entire big reaction. What reactions you have to write and you have to study is hydrochloric acid plus sodium hydroxide gives sodium chloride, that is sodium and chlorine इधर का combine हो गया, sodium chloride इधर बेचारा H बच गया radical, इधर hydroxyl radical बच गया. वो दोनों भी फाइनली क्या करता है? कोई ऑप्शन नहीं है तो अभी एक दूसरे के साथ ही हाथ मिला के दे फॉर्म वाटर. ओके, ये समझ में आया रिएक्शन. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. एसिड HNO3 प्लस बेस कौन सा यूज़ किया रहेगा इन लोग ने इधर? लेट्स अज्यूम अभी यू आर टू इमेच्योर टू आइडेंटिफाई कि कौन सा बेस यूज़ हुआ है इधर. बराबर, बट KNO3 आ रहा है, दैट इज़ K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, मतलब बेस के अंदर पोटेशियम तो अवेलेबल है ही एंड प्लस OH भी है, तो वी कैन identify it that this is KOH. The base used is KOH. बराबर. So nitric acid HNO3 plus KOH. So potassium combines with nitrate. Okay, nitrate NO3 से combine कर लिया to form potassium nitrate. And plus इधर वापस हाइड्रोजन रेडिकल बच गया, इधर OH रेडिकल बच गया. They combine with each other to form water. So your reaction is nitric acid plus potassium hydroxide gives you potassium nitrate and water. बराबर. This is what we are studying is neutralization reaction. अभी तक we are doing only neutralization. Okay, now there's another acid which is combining with ammonium hydroxide. So what is the particle of that particular acid? Sulfate. Okay, since ammonium is forming ammonium sulfate, मतलब नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नहीं यूज़ हुआ रहेगा. व्हाट अनदर एसिड इज लेफ्ट? वी हैव H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. बराबर. सो सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइंस विद 2NH4OH, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अमोनियम सल्फेट एंड अगेन क्या रहेगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो H2O एंड H2O, पानी तो बनेगा ही तभी न्यूट्रलाइज, देन ओनली द रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, द वाटर इज अ permanent component which is being formed in the product. Now here we are having KBr. Okay, then hydrogen bromide. Hydrogen bromide is the acid used. Okay, this hydrogen bromide is also an acid. It comes from the same family.
Okay, fluorine, chlorine, bromine and iodine, they belongs to the same family of gases where the outermost orbit has only one electron. वो हम लोग स्टडी करेंगे when we are going to do the periodic table that you have a complete lesson on periodic table, that is it gives you the elements, atomic nature, नंबर, मास, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वैलेंसी, बहुत कुछ मालूम पड़ता है उसमें से. दैट पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल यू हैव एन एंटायर लेसन ऑन इट. ओके, तो वो बहुत बड़ा सर दर्द है, हम लोग 10th में देखेंगे. हाइड्रोजन ब्रोमाइड, दिस इज ऑल्सो अ एसिड. वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज एन एसिड? इट्स नॉट कॉमनली, मतलब आता नहीं है जल्दी जल्दी इसलिए, बट दिस इज एसिड बिकॉज ऑन डाइल्यूशन, ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, it will give you H plus and Br minus, same like H plus and Cl minus in case of hydrogen chloride, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, हाइड्रोक्लोरिक बोलता है इसको, हाइड्रोब्रोमिक बोलता है कि नहीं बोलता है मालूम नहीं है, बट इट इज़ नोन एज बोरिक एसिड ऑल्सो. ओके, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन सॉलिड फॉर्म. एट रूम टेम्परेचर सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल रहता है ये. ओके, सो योर रिएक्शन विल गिव यू KBr plus H2O. प्रेजेंटली आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू दिस पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक्स ऑन योर ओन, बिकॉज अभी तक रिएक्शंस, यू आर न्यू टू रिएक्शंस, यू आर जस्ट स्टडिंग न्यूट्रलाइजेशन. इसके बाद में यू हैव टू स्टडी रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल, देन रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ नॉन मेटल, नहीं नॉट नॉन मेटल, एसिड्स विथ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, देन यू हैव टू डू metal oxide. Okay, then you, okay, acids with metal first, acids with oxides of metal, then you have reaction of bases with oxides of metal, oxides of non-metal, not oxides of metal, because oxides of metals are already basic in nature. तो basic and basic ज़्यादा reaction नहीं होता है. Reaction of bases with oxides of non-metal, you will study this particular reaction and some examples which you have to by heart. ओके, अभी इसके लिए कोई अल्टरनेट नहीं है, करना है तो करना है. डोके दुखी है, काही करू शकत नाही. यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, अभी ये डोके दुखी कमी है. 10th में ये और 2 लेवल ऊपर जाएगा. आफ्टर दैट यू विल बी स्टडिंग रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल. ये तुम्हारे लिए अभी इतना ही रिएक्शन पढ़ने का है 9th में. इन 10th में द ऑल दीज 5 टाइप ऑफ रिएक्शंस विल बी रिपीटेड. अलॉन्ग विद दैट 6th रिएक्शन ऑलरेडी और आएगा उसके अंदर, दैट इज एसिड्स विथ सल्फेट एंड बाइसल्फेट्स. ये भी 10th में आने वाला है, बढ़ने वाला है. ओके, तो 10th का पोर्शन इसके साथ साथ और एडअप होके नया आएगा, उसमें और भी 2-3 टाइप का रिएक्शंस आएगा. आई एम नॉट ट्राइंग टू फ्राइटन यू, ओके, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ फेयर आइडिया व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट ईयर. अगर ये कच्चा रह गया तो 10th में कुछ नहीं समझेगा, भगवान भी तुमको 10th पास नहीं करा सकता है. बिकॉज in your 9th standard you have only 2 lessons related to chemistry, but in your 10th almost more than 50% portion of your maths 1, since maths 1 बोल रहा हूँ, science 1, since science will be divided into 2 subjects in your 10th standard, you will have science 1 and science 2. okay, science 1 will be physics 50%, chemistry 50%, तो आधा आधा तो तुमको स्टडी करना है. okay, and if you are getting a paper of 50 marks, automatically 25 marks will be from chemistry. So if you want to pass with good percentage and get admission in some good college for your future, बराबर, so at that particular time तुमको क्या करना पड़ेगा? You have to do these studies very very nicely, और ये केमिकल रिएक्शंस लर्न करना पड़ेगा. एज ऑफ नाउ जितना भी इधर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है मैं सब सॉल्व करके दूंगा तुम लोगों को, so that you can write it, by heart it, and then we'll take a separate test only about the reactions. okay, all 5 kind of reactions I'll ask you to give me 3 examples in writing. एक टेस्ट लूँगा मैं इसका. after finishing this lesson itself we'll go directly for a test before we start with other lessons. okay, तो इसको अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, so you can get admission. अगर साइंस में एडमिशन लेना है तो अच्छा परसेंटेज लगेगा. डॉक्टर इंजीनियर जिसको बनना है उनको परसेंट लेना ही पड़ेगा, सो बाय हार्ट करो. ओके, हाँ, अगर गंदा परसेंट आने के बावजूद तुमको साइंस में एडमिशन चाहिए 35-36% पे, द ओनली ऑप्शन इज गो टू फ्लोरा फाउंटेन सिद्धार्थ कॉलेज. ओके, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, नाम से ही दिखता है आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स लिखा. उन लोगों ने पहला तरजीह उन लोगों ने आर्ट्स को दिया है.
ओके वहाँ पर यू गेट एडमिशन 35-36% लेके आओ, साइंस में एडमिशन हो जाता है। ओके बट वहाँ से बच्चे लोगों का रिकॉर्ड है कि 12th के अंदर मुश्किल से 10% भी पास नहीं होते। ओके 35% लेके अगर साइंस में जाएगा तो बोर्ड एग्ज़ाम 12th में कहाँ से क्लियर करेगा? एडमिशन लेने के लिए तो पब्लिक ले लेती है, लेकिन ये नहीं सोचती कि 12th क्लियर कहाँ से करेंगे। ओके सो बच्चा लोग, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर हार्डवर्क करना है तो करना है। ओके अभी ये इतना थोड़ा ब्रेक मैंने इसलिए लिया बिकॉज जो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन लिया था यहाँ पर यही ओवरलोड हो गया रहेगा तुम्हारा दिमाग में। सो इफ़ आई वुड हैव स्टार्टेड डायरेक्टली विद द नेक्स्ट वन, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। ओके और यहाँ से अगर टेक्स्ट बुक से मैं ईच एंड एवरी रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करूँगा तो ये और ओवरलोड होने वाला है, बिकॉज हाउ टू आइडेंटिफाई द मिसिंग compounds used or the missing acids or elements used, okay, in the reaction. So what I have done is I will explain you अपना बोर्ड के ऊपर, that is in my diary. Just a minute, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए अलग से सब कुछ लिख के रखा हूँ, so let's do it in that. okay चलो विल स्टार्ट अगेन विद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डजेंट मैटर, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट समझ में आ जाएगा क्या होता है। लुक हियर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस वाज द रिएक्शन विच वी स्टडीड। ओके नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल गिव यू दिस सोडियम cation will combine with the chlorine anion immediately and they unite to form sodium chloride. क्या बाकी रह गया? इधर H बाकी रह गया, OH बाकी रह गया। दे विल यूनाइट, कोई ऑप्शन है उनके पास? नहीं, आपस में उन लोग को यूनाइट होना है। यूनाइट हो गया एंड दे फॉर्म्ड H2O, बराबर। सो द रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। नाउ आई हैव रिटन द सेम रिएक्शन अगेन। यू विल से सर ने दो बार क्यों लिखा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गिव यू सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ये बच्चा लोग मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज लास्ट ईयर अपने पास स्टूडेंट थे, मालूम है, 9th स्टैंडर्ड के, लास्ट टू लास्ट ईयर, सॉरी नॉट लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, देयर वर 2 स्टूडेंट्स ऑफ 9th, जीनियस स्टूडेंट, कितना भी समझाओ उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता था। ओके प्रांजल एंड जेनिफर, आई होप मोस्ट ऑफ यू रिमेंबर दिस, दे वर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर, और दोनों का IQ लेवल भी वैसे ही था 0-0। ओके उसमें से जेनिफर ने मुझको पूछा था, सर सोडियम हाइड्रोक्साइड इफ़ मिक्सड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सर लेकिन अगर इसको उल्टा मिक्स करेंगे तो क्या होगा? मतलब इंस्टेड इफ़ यू टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दी बीकर और टेस्ट ट्यूब वट एवर इट इज़, इफ़ यू टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट एंड देन ऐड HCl टू इट, तो रिएक्शन कुछ उल्टा होता है क्या? ओके क्वेश्चन सुन के ही तुमको, क्वेरी सुन के ही समझ में आ गया रहेगा कितना वंडरफुल ब्रेन है उसका, बराबर। सो जस्ट बिकॉज अभी लॉकडाउन का टाइम है, यही सवाल मेरे और भी कुछ बच्चों के दिमाग में आया रहेगा, बट अभी पूछ नहीं सकते, बट मैंने इसको पहले से सॉल्व कर दिया। ओके वेदर यू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यू ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके योगा नहीं है, उल्टा खड़ा रहेगा तो अलग रिजल्ट निकलेगा, पैर पे खड़ा रह के योगा करेगा तो अलग रिजल्ट निकलेगा, और सर के ऊपर खड़ा रह के, सर से ऐसा उल्टा इन्वर्स खड़ा रह के अगर सर नीचे रख के खड़ा रहेगा तो कुछ अलग रिजल्ट निकलेगा, वैसा नहीं है। ओके केमिकल रिएक्शंस हो गया या लॉज ऑफ फिजिक्स जो भी है, इट मे बी ग्रेविटी, इट मे बी अट्रैक्शन, इट मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट मे बी एनीथिंग। ओके ये सब जितना भी प्रिंसिपल्स है विच एक्चुअली आर running all the time in our earth, okay, they are fixed and they are so very fixed that on the basis of that in modern days we have prepared instrument like rockets and other thing, okay, and we can calculate without a mistake of a single second the launch of the rocket, the time it will reach its destination in the space and the time when it will return back and hit earth again। ओके हम लोग वो चीज़ बता सकते हैं कैलकुलेट करके, राइट अप टू द परफेक्शन ऑफ सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स, बराबर। ये प्रिंसिपल्स या सिद्धांत जो बोलते हैं ना, प्रकृति के सिद्धांत, द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, दीज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर आर दैट वेरी फिक्स्ड, ये इतने सटीक है, नेचर के सिद्धांत इतने सटीक है कि आप रॉकेट का, ओके फायरिंग ऑफ द रॉकेट, एक्सक्यूज़ मी, लेकिन हिंदी के अंदर बहुत थोड़ा गाढ़ा हो जाता है ये,
ओके, रॉकेट के प्रक्षेपण और उसकी वापसी का टाइम हम लोग बता सकते हैं, बिल्कुल सटीक बता सकते हैं, राइट अप टू 0 एरर, अप टू नैनो सेकेंड्स के परफेक्शन तक हम लोग बता सकते हैं। जितना परफेक्शन हम लोग बता सकते हैं उतना परफेक्शन तो हमारी घड़ी माप भी नहीं सकती है। आवर रिस्ट वॉच आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिजिटल वॉचेज एट्सेट्रा विच आर यूज्ड बाय साइंटिस्ट। ओके, सो बेटा, सो द एंड ऑफ द थिंग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालो, एसिड को बीकर में लेके उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से पाउडर डालो, या पाउडर को बीकर में रख के ऊपर से एसिड डालो, रिएक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम, सोडियम क्लोराइड या एंड वाटर। ओके, मतलब इट इज़ लाइक चावल में पानी डाल के उबालो या उबलते हुए पानी में चावल डालो, बनेगा तो तुम्हारा राइस ही ना, बराबर। हाँ, तो ऐसा कमेंट करके बताना किसको किसको ये वाला डाउट आया था जो जेनिफर को आया था। ओके, दैट इज़ नथिंग अबाउट इट, ग्रुप में मत डालो, पर्सनल इसमें डालो, तो आई विल कम टू नो कि हाँ कौन सा बच्चे का IQ लेवल थोड़ा वीक है। सो अकॉर्डिंगली उस बच्चे के लिए मैं कुछ आगे के जो फर्दर डेफिनेशंस वगैरह आएगा, जो फर्दर कैलकुलेशंस वगैरह आएगा, आई विल सी टू इट दैट कि उसके लिए खास करके अलग से कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँ। दिस इज़ फॉर योर बेटरमेंट। जिसके दिमाग में ये डाउट आया रहेगा, ओके, सिर्फ वही लोग मेरे को कमेंट डाल के बोलना हाँ ये डाउट हमारे इसमें आया रहेगा, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट। अगर तुम लोग ज़बरदस्ती डाल दोगे, आया नहीं भी रहेगा फिर भी डाल दोगे ना, तो जो एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा तुम्हारा IQ लेवल कम समझ के, तो जो चीज़ तुमको समझ में भी आया रहेगा उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सो वो लर्निंग कम और टॉर्चर ज़्यादा हो जाएगा तुम लोगों के लिए। समझ में आ रहा है? चलो, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन बेसिक चीज़ समझ लो, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। Okay, sodium chloride is common salt only. The example has been used only to tell you that a strong base reacts with strong acid to give you salt and water. बराबर है? Now we'll go for the next kind of a reaction where acids. What is the reaction if the acids reacts with metal? Okay, if acids react with metal, it again gives salt and water नहीं आता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आता है। ओके, दिस इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओनली बिकॉज H2 गैस आ रहा है, जस्ट बिकॉज एन ऑक्साइड इज मिसिंग ओवर ईयर, ऑक्सीजन इज मिसिंग, तो हाइड्रोजन एटम जो रिलीज होता है, हाइड्रोजन रेडिकल्स जो रिलीज होता है, दे डोंट फाइंड ऑक्सीजन टू कंबाइन विद। सो व्हाट दे डू, अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलता है तो वो लोग हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके दे फॉर्म H2 विच इज गैस एंड दे रिलीज। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज अ मेटल, ओके, reacts with hydrochloric acid Mg plus hydrochloric acid will give you magnesium will combine with Cl2। magnesium का वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का 1 है, so to balance we will get MgCl2 with 1 atom of magnesium, 2 atoms of chlorine, or to be very precise 1 radical of magnesium will combine with 2 radicals of chlorine to form magnesium chloride। आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। बाकी क्या रह गया इधर, 2 रेडिकल्स ऑफ हाइड्रोजन, बेचारा अकेला रह गया। सो व्हाट दे विल डू, आजू बाजू में ढूंढेगा, कुछ नहीं मिला तो वो लोग आपस में यूनाइट होके व्हाट दे विल डू, H2 गैस बन के उड़ जाएगा। ओके, समझ में आ गया? लेट्स रिपीट अगेन, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव यू मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2 गैस। ओके, nowadays they use this H2 and ब्रैकेट के अंदर छोटा g लिखता है गैस। when we were in school and college, अब हमारे टाइम पे मेथड अलग था, we used to indicate gas with an up arrow, H2 gas, this means it is getting released from in the atmosphere, H2 gas। ओके, सो आई एम हैबिटेड टू दिस, मैं अभी भी यही लिखता हूँ, भले फैशन चेंज हो गया रहेगा लेकिन ऑटोमेटिकली वो बोलता है ना, एक बार आदत पड़ गया वो चेंज नहीं होता है। और स्पेशली मेरे जैसा आदमी जो रट्टा मार मार के किया है यार, वो इतना आसानी से तो भूलेगा नहीं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज जिंक। इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम वी आर यूजिंग जिंक, whereas we are using the same acid। okay, zinc combines with hydrochloric acid, zinc का again valency is 2, so again it will form zinc chloride ZnCl2 plus hydrogen gas। okay, this is the reaction of acids with metal। इसका मैं फोटोग्राफ्स भेजूंगा, आपको लिखना है ईच एंड एवरी रिएक्शन, यू विल हैव टू राइट 5 टाइम्स एंड बाय हार्ट करना है। ओके,
नाउ वी हैव रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड, इधर मेटल था इधर मेटल ऑक्साइड आ गया, मतलब क्या हो गया, मेटल के साथ में ऑक्सीजन भी आ गया। मैंने क्या बोला था, उधर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है इसलिए बेचारा हाइड्रोजन गैस निकल जा रहा है, बराबर। अभी ऑक्सीजन मिल गया उसको। सो टेक लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। ओके, ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या होगा, मेटल ऑक्साइड विल कंबाइन विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वाई, बिकॉज इधर हाइड्रोजन को बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है, उसके लिए उसका पार्टनर ऑक्सीजन आ गया है तो वाटर बन जाता है, बराबर। लेट्स से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl will give you CaCl2, that is calcium chloride and H2O। कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का 1 है, दैट इज़ वाई वी रिक्वायर 2 क्लोरीन एटम्स टू कंबाइन विथ कैल्शियम टू मेक अ स्टेबल मॉलिक्यूल, बराबर। ओके, दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी कमिंग अप टू 31 मिनट्स, तो शायद इसको मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा। ये 31 मिनट्स का वीडियो है। लेट्स स्टॉप दिस एंड कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, चलो बाय।